So, because you're a clinician, I also want to talk about pain management, since since I believe that is something that undergraduates, especially and fresh graduates, struggle with a lot. So, first of all, I want to talk about this condition that is often confused with odontogenic pain, that is temporomandibular disorder, right? TMPDS or TMD, etc. So, how would you comment on this because it is often said that it is not a single disease, it is a group of disorders. So, what do you mean by group of disorders exactly? So, thank you for praising me. And I think I was fortunate enough that there was few prosthodontics when I graduated. Mm-hmm. So I got an opportunity to work and to participate in the conference and workshops. Otherwise, there are many wonderful prosthodontists in the city. Sure, So, I'm sure. I'm lucky enough to get more fame somehow. It's more than just luck, but sure. Yeah. So, no, it's more or luck. So, you have a very valid question. What is TMD, temporomandibular joint? And before we talk about the temporomandibular joint, we need to understand few things. Okay. One is our head position, other is our joint. Okay. So, I usually describe to my patient that head is just like a football, Okay. standing on a handle, bad like a bad handle. But the interesting thing is, it is the handle is not in the center. The vertebrae is off center. It's the 70. You can say it like 70% head is forward, and only the 25% head or 30% head is at the back. Hmm. So the vertebrae on which the head is resting is not in the center of the head. ठीक है, that It's makes off the sense. center. It's off center, yeah. Yeah. So its majority of head is in forward position. And if we numb all the muscles, head gonna fall on our chest. That makes sense, yeah. Park it. I will come back to it Okay. again. Second thing I would like to talk about is the joint, temporomandibular joint, which join the mandible with the base of skull or ठीक है. with the skull. ठीक है. And when we talk, when we chew, our mandible is constant making rotation and translation. ठीक है. रोटेशन मीन गोल घूम रहा है, ट्रांसलेशन आगे पीछे चल रहा है. ठीक है. इट इज द ओनली जॉइंट इन द बॉडी विच ट्रांसलेट. इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट इन द बॉडी. सारे जॉइंट रोटेट करते हैं वन डायरेक्शनल और टू एक्स के ऊपर. लेकिन ये रोटेशन के साथ साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव भी करता है. राइट. और जब फॉरवर्ड मूव करता है तो कॉन्डाइल का जो डिस्टेंस होता है वो भी थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है. ठीक है, दैट मेक सेंस. पीछे जाता है वाइड हो जाता है, जब करीब आता है तो थोड़ा सा नैरो होता चला जाता है. मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, उसको भी पार कर दीजिए अभी आप. ठीक है, दो चीजें ये हो सकता है ये जो इंटरकॉन्डाइलर डिस्टेंस है वो कहीं हमारे डिस्कशन में आगे इस्तेमाल होगा, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, नहीं तो उसको आज बात भी नहीं करेंगे. इफ रिक्वायर्ड वी विल टॉक अबाउट. राइट. अब आप वापस आ जाएं कि हेड वॉज ऑफ सेंटर, वॉज स्टेबलाइज्ड बाय द नेक मसल, स्पेशली बैक नेक मसल्स. ठीक है. अगर हम सर नीचे झुकाते हैं तो इट इज कैंटिलीवर. ओके. कैंटिलीवर मीन सेंटर से ऑफ सेंटर हो गया. वैसे भी हेड ऑफ सेंटर है, लेकिन ये ज्यादा ऑफ सेंटर हो गया. और ये तो रोटेट किया. अगर मैं लीन भी कर लूं अपने नेक को तो और मसल्स को, सर्वाइकल मसल्स को काम करना पड़ेगा. जब मैं बातें कर रहा हूं तो मेरा मैंडिबल मूव कर रहा है, मेरा सर मूव नहीं कर रहा. आपने ये नोटिस किया होगा. आपने किसी को देखा है कि उसका सर भी साथ साथ मूव कर रहा हो जब मैंडिबल मूव कर रहा होता है? नहीं देखा, आमतौर पे नहीं देखा. आपको ये क्वेश्चन भी सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूं. अब आप गौर करें, मैंडिबल ड्रॉप हो रहा है, सही है. जब मैंडिबल ड्रॉप हो रहा है तो मैंडिबल को सर्वाइकल, एंटीरियर सर्वाइकल मसल्स ने होल्ड किया हुआ है. जब वो ड्रॉप करता है तो उसने पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल्स ने हेड को इतना स्टेबल किया हुआ है
कि हेड ड्रॉप नहीं हो रहा है, हेड Right. वहीं का वहीं है, उसने प्रेशर को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है, इतनी अच्छा सिंक्रोनाइज काम हो रहा है सर्वाइकल मसल्स का, मैस्टिकेटरी मसल्स का, कि जब एक जगह पे बैलेंस कहीं और जाता है तो हेड मूव नहीं कर रहा। True. मतलब हमें बात करते हुए हेड पे एक जर्की मूवमेंट आ जानी चाहिए थी, नहीं सही। आती है। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा इक्विलिब्रियम रखा हुआ है कि नहीं आती। टीएमडी में क्यों आती है? या तो हमारे दांत, इस पे भी एक स्टेप मैंने छोड़ दिया। अब ज्वाइंट बंद होने का, इट इज अ हिंज ज्वाइंट। जैसे दरवाजे में हिंज होता है वैसे खुले बंद होगा। सही। रोटेशन मूवमेंट के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। दरवाजे में एक लॉक भी होता है। कोई कोई दरवाजा जो है ना, आपको ज्यादा जोर से बंद करना पड़ता है क्योंकि उसकी लॉक की सेटिंग उसके हिंज की सेटिंग के साथ आउट होती है। ठीक है। ये क्योंकि मैं डेली लाइफ के साथ एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आई थिंक दैट वुड बी मोर, पीपल कैन रिलेट इट मोर विद देयर डेली लाइफ। जैसे दरवाजे का हिंज लॉक है, हमारे दांतों की इंटरकस्पेशन भी हिंज लॉक की तरह है। सही। उसका एक कंफर्टेबल पोजीशन है दांतों की कि दांत ऐसे बंद होंगे। एक जॉइंट की है कि वो ऐसे बंद होना चाहता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम दोनों बहुत ही सिंक्रोनाइज होते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाज दफा ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होते, इनमें डिस्क्रिपेंसी होती है। आसान फहम के अंदर ये डिस्क्रिपेंसी जितनी होती चली जाएगी, सही है, उतना जॉइंट के ऊपर लोड आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। एक, अगर ड्यूरिंग जॉ मूवमेंट पोस्टीरियर टीथ यानी कि मोलर्स हमारे टच हो रहे हैं जॉ मूवमेंट में, तो वो जर्की मूवमेंट हमारे जॉइंट के ऊपर आती चली जाएगी। वो माइक्रो ट्रॉमा करता चला जाएगा। सही। जो हमने इंटरकस्पेशन के ऊपर बात की, अगर देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कंफर्टेबल टीथ पोजीशन, ऑक्लूजन एंड कंफर्टेबल जॉ पोजीशन, तो वो भी ट्रॉमेटाइज करेगा जॉइंट को, क्योंकि मसल्स क्लोज होगी, हाउ टीथ आर सही, तो कांस्टेंट स्ट्रेन में रहेगा, कांस्टेंट स्ट्रेन में रहेगा। ठीक है। एड ऑन विथ सर्वाइकल मसल्स पोजिशनिंग, बहुत सारे लोग अब लैपटॉप पे काम करते हैं। लैपटॉप के साथ क्या है, पहले कंप्यूटर पे होता था, अब लैपटॉप है। लैपटॉप पे कीबोर्ड और स्क्रीन दोनों बहुत करीब है। या वो स्क्रीन को कंफर्टेबल पोजीशन पे ले आते हैं या कीबोर्ड को। और आमतौर पे वो टेबल पे जब कीबोर्ड माउस को रखते हैं, तो लैपटॉप को रखते हैं, तो नाइदर देयर कीबोर्ड इज इन कंफर्टेबल पोजीशन नॉट देयर स्क्रीन। राइट। वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो दे लिफ्ट देयर शोल्डर, दे मूव देयर हेड फॉरवर्ड टू लुक इनटू द स्क्रीन, और वो हेल्दी पोजीशन नहीं होती। दैट मेक्स सेंस। वर्टिब्री हेल्दी नहीं है, एक्सरसाइज कर नहीं रहते कि मसल्स हेल्दी होते। तो ऐसे लोग और प्रोन हो जाते हैं फॉर हैविंग अ टेम्पोरामेंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन। सर्वाइकल माइल्जिया स्टेप बाय स्टेप चीजें डेवलप होती चली जाती है। माइल्जिया मसल स्पिन दैट कीप हैज अ डोमिनो इफेक्ट। एक मसल टेंडर हुई तो उसने दूसरे ने तीसरे को करते चले गए, और इवेंचुअली टीएमडी and eventually TMD. Sir, and it's a vicious circle. I'm glad that you mentioned this part because अब तक TMD के बारे में what we used to understand was कि बस bad occlusion की वजह से ही होता है, but the cervical myalgia was a good addition to it and it makes total sense as well. Cervical myalgia, head positioning, body positioning. Many people who work, they carry laptop bag on their one shoulder. बहुत सारे लोगों का शोल्डर आर्क बैलेंस नहीं होता, वो वन साइड टिल्टेड होता है।